Rajasthan is a fabled land. Its stark desert landscape dotted by hilltop forts, a sparse countryside peopled by lanky, mustachioed men and hardy women in vibrant multicolored clothes. The people here are inheritors of a rich and varied history, that of legendary warriors, wealthy kingdoms, and queens of incomparable beauty. In recent times, though, the people of Rajasthan have made history in a different sort of way. They've been in the forefront of civil society struggles that are transforming the entire nation. The Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, for example, has played a crucial role in the passage of Right to Information and Rural Employment Guarantee Act, two major tools in the fight against corruption and poverty. Recently, IFA has connected with one such group that has an amazing record of working on behalf of the poor and marginalized tribal communities. The seeds of the group Sankalp were sown almost 3 decades ago when 3 young friends found themselves sharing a strong desire to do something for their community. Education was their passion. They started by teaching children in a sweeper colony of Kota, Rajasthan. Eventually, they will set up their base in a tiny village called Mamoni, and their work will come to encompass 2 entire blocks, Kishanganj and Shahabad, of District Bara in the southeastern corner of Rajasthan. In 1992 and again in 2001, Sankalp took up funded education projects. This led to the founding of campuses in Mamoni and Kishangarh, housing residential schools for tribal children. In all this work, a major obstacle was the natural tendency of these remote and conservative communities to resist opening up to the outsiders. To counter this, they enlisted the help of several local women who were trained to interact with the villagers and make them aware of the benefits of educating their children, particularly the girls. It was this group of women that was eventually to form the core of Sankalp's work that now is reaching the entire state and beyond. प्रशिक्षण के बाद फिर ये महिलाएं गांव में जाती थी और लड़कियों को जोड़ने में स्कूल में मदद करती थी, पर उसके साथ साथ उस प्रशिक्षण का ये असर भी हुआ कि महिलाओं के ऊपर जो हिंसा थी और जो महिलाओं के जो मुद्दे थे वो भी इससे निकल के आने लगे, जो कि उस प्रोग्राम का उद्देश्य नहीं था। इस तरीके से ये 92 से 98 तक यहाँ पे ये लोक जुम्बिश का प्रोग्राम चला और फिर अगेन हम लोगों ने यहाँ पे 2001 से एक दूसरा दशक का प्रोग्राम चालू किया और इस प्रोग्राम का भी मुख्य उद्देश्य ये था कि 11 से 20 आयु वर्ग के जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं जो वंचित वर्ग के हैं और जो शिक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उन वंचित वर्ग के लड़के लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जाए और एक ऐसा कैडर बनाया जाए लड़के लड़कियों का जो समाज परिवर्तन के लिए काम कर सके। तो फिर हमने पुनः महिलाओं के साथ संपर्क किया, तो उस वक्त इन महिलाओं में से ये बात निकल के आई कि ये जो आप लोगों के जब प्रोजेक्ट चालू होते हैं तब आप आके हमसे संपर्क करते हो, आपके प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं तो हमसे संपर्क खत्म हो जाता है। कि भाई देखो कि संस्था तो आज और कल नहीं है, जब संस्था के पास परजोट रहे थे तो संस्था चले थे, फिर कम से कम ये गांव का संगठन तो गांव में ही रहेगा। तो फिर जागृत महिला संगठन 2002 में जागृत महिला संगठन बनायो। The area is part of the tribal belt of India. The predominant community is of the Sahariyas. There are also Kheruas, who, as a result of some bureaucratic bungling, have been listed as non-tribal, thus depriving them of crucial government benefits. सामान्य परिचय है, हम उदयपुर में हम काथोड़ी के नाम से जाने जाते हैं और मध्य प्रदेश में हम गोंड आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं। Most of the tribal people in Rajasthan are concentrated in these 2 blocks, where they comprise about 35% of the total population. For Sankalp, education turned out to be merely an entry point, for soon they realized
that these indigenous communities, as in the rest of India, or worldwide for that matter, are facing a catastrophe. While they are losing their traditional livelihoods, the state, with its preoccupation with urbanocentric growth, has failed to create any alternatives. And whatever means they do contrive to eke out a living, they face all kinds of obstacles. जी साहब माँ पहली से आज के 50 साल पहले यहाँ मेवासी चरावा हुआ था ये माँ यहाँ जमीन दिखाई जिसे माँ यहाँ दी कहाँ से आते थे मवेशी चराने? यहाँ आमा समाई कोई 10 कोस को कोई 4 कोस को कोई 5 कोस को बमनिया शहर है और रतलाम जिले की रतलाम से मजदूरी करवाया मजदूरी करता करता जमीन दिखी जितनी आई बस भाई देख लिया जमीन पड़ी है तो यार ये फालतू है तो मतलब हाँकने लग गया हाँक के फिर उसमें वहाँ मकान बना लिया मकान बनो के रहने लग गया और अब ये सरकार गवर्नमेंट वाले आएंगे तो उनको देते रहेंगे और अपन करते रहेंगे अपना पेट भरता रहेगा। ये लोग भी जंगलों में बसते आ रहे हैं लंबे समय से 40 साल 50 साल से और वो जंगल की जो जमीन थी उस पर खेती करते आ रहे थे। खेती कर रहे हैं खेती कर रहे हैं। इनके ऊपर जुर्माने लग रहे हैं। अच्छा अच्छा ये दंड दे रहा ना तो कोई दंड को नहीं ये नियमन हो जाए तो इनको संकट या पड़ेगा। ये निम्न हो जाओ तो आपका बाग से माँ पार हो जाओ पर जुर्माना भी तो कोई तो 50,000 मांग कोई रहा है 50 मांग रही हो कोई 30 मांग रही हो नहीं ऑफिशियल भी होता है जुर्माना और थोड़ा सा क्या है कि ये पैसे भी खा लेते हैं फॉरेस्ट वाले और धमकाते भी हैं इनको। कोई जेल वेल भी गया क्या तुम? जेल भी है साहब 2-2 4-4 8-8 दिन एक्चुअली हमारा पूरा समाज का एक धंधा परंपरागत धंधा कत्ता फाड़ने का है जो कि खेर के पेड़ से बनाया जाता है। अब वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आपके पिताजी यही करते थे? नहीं मेरे पिताजी ने वो तो क्या करते थे? ये तो कत्था फाड़ते थे कत्थे का। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी? नहीं आते जो कत्थे से काफी हाँ उससे गुजारा होता था। अब कत्थे का काम बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल जंगल नहीं रहा, जंगल ही नहीं। कोई चपड़ासी चे मुई चू तो मैंने कह दी कि भैया इतना पैसा दे जा और हाथ में गाड़ी बल ले जा तो जंगल तो खत्म ही हो तो जा रहे और जंगल में से तो देखो ये शेरियान का पालन पोषण हो रहे तो पहले गोंद महुआ तरह तरह का फल खाता था। जंगल तो माया भी खाड़ पानी बर्बाद सारी 2-4-10 दिन चीन सारी लाल लाल पानी बर्बाद ठीक है ना कि इतना घना जंगल था कि जो पानी का जो सोर्स है ना खाड़ कहते हैं इसको तो खाड़ में पानी भरने के लिए अकेले भी नहीं जा सकते थे 4-4 6-6 इकट्ठी होकर जाती थी। कोई नहीं कट्टा छोड़ो फिर लकड़ी काटने लग गए जो जलीता बलीता जो लकड़ी के मर वो खत्म हो गया। उसके बाद जो खान बची अब खान है और कोई काम नहीं और कोई काम नहीं। It is precisely this dynamic of a marginalized community, coupled with the age-old inequities of the village power structure, that explains why, more than 6 decades after independence, so many are still being forced to live in bondage. सर ये बनवा मजदूर तो 12 जिला में खूब हजारों बात न बतावे कि भाई अब बार बताऊंगा तो पता नहीं ये अपनी मार पीट करेगा तो अब मेरा बाप मर गया तो उसका कर्जा में है ना मैं मर गई तो उसका कर्जा मेरे लड़का के ऊपर ऐसा चलता रहता तो वे तो जिंदगी भर हाड़ी का काम करो बंधुआ मजदूर का कर्जा तो ले लिया वो पैसा ले लिया वो तो उसी वक्त खर्च हो गया और काम करने चले गए। अब इसको रोजगार का काम भी चलाना है तो कभी 10 किलो अनाज कभी 5 किलो अनाज कभी 7 किलो अनाज ले लिया वो इनके नाम पे लिखते जाते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जिस दिन काम करने नहीं जाते उस दिन की मजदूरी ये मानते हैं कि 100 रुपये रोज दूसरे को लगाएंगे तो वो नागा मानते हैं उसको और वो एब्सेंट का पैसा इनके नाम पे डबल कर देते हैं। फिर बीच में इसको जरूरत पड़ गई कपड़े की लत्ते की या बीमारी की वो पैसा उधार ले लिया तो वो चढ़ता गया उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगाते हैं वो और इनको हिसाब करना नहीं आता तो अब वो जो बताया वो इनको मानना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि फिर जब साल के आखिरी में एक बार हिसाब होता है तो वो उसको बताता है कि तेरे पर 15,000 या 20,000 रुपये और हैं एक्स्ट्रा हैं तो अब तू ये पैसे चुका के जा यहाँ तो पैसे दे के जा या फिर मेरे पास काम कर तो वो फिर एक चक्कर चलता जाता है। 24 घंटे का मजदूर है वो 24 घंटे का तो ये बहुत बड़ा शोषण है बहुत बड़ा शोषण है। मतलब ये आज ये फालतू बैठे हैं यहाँ पे मतलब फालतू से मेरा मतलब अपने को ये
बैठे हुए मिल गए, ये कभी जीवन में ऐसे नहीं बैठे होंगे। 8 साल मेरे लिए काम करते करते कारीगरी, 4 साल मैंने कंपनी में करो काम, जो मेरे पापा जी के साथ लग रहा था। 30,000 रुपये थे, जो सेठ ने बोले कि 10,000 रुपये तेरे नाम पे लिख दूंगा। जो 10,000 नाम पे मेरे पे लिख दिए, जो एक सेठ के पास लग गया, पंडित जी छगन गौतम, खूब 4-5 साल काम करा मैंने। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, जो उसने पैसे नहीं दिए मेरे लिए, कहने लगा कि पर्ची बनवा ले तेरी। पर्ची बना दी उसने 60,000 रुपये की, जो बड़ी मुश्किल से 30,000 की पर्ची बनाई उसने। तो 5 दिन के अंदर अंदर मैं कहाँ से लगा दूंगा, मेरे पास कुछ रखा ही नहीं है। तो मैं ज़मीन हो तो ज़मीन बेच के दूँ। मुझे ले गया बिठा के जीप में, खान पे ले गया। वहाँ जाके एक सेठ को फ़ोन करा गुजर, जो उसने आके मेरे 2-3 थप्पड़े दी। फिर मैं वहाँ से भाग आया, यहीं 4-5 महीने रहा घर पे। जो फिर मेरे पापा जी ने दिए पैसे और फिर उनके पास लगा अभी काम पे। अब कहाँ काम कर रहा है? कर तो उधर ही रहो काम, उधर ही कर रहा मैं। और मेरे माँ बाप सब लाइन पे जाते थे खदानों पर, और यहाँ पर गांव में कोई ना माँ ना बाप, जो एकले रहने के चक्कर में जो हम भी उधर ही चल गए, जो हम भी वो काम सीख गए। क्या काम करते हैं? ये कारीगरी का। कारीगरी खान में? हाँ, खान पे पत्थर काटते हैं। कितना कर्जा है अभी तेरे ऊपर? कर्जा तो नहीं है मेरे ऊपर, मेरे पापा के ऊपर जरूर है। कितना? 40,000। तो फिर तू क्यों जा रहा है जब कर्जा ही नहीं है? जब इनों के पिताजी के माथे पैसे हैं, पैसा इनसे वसूल होंगे। मैंने शादी के लिए पैसा लाए और उसके पास बेचारों लगा दे। कितने पैसे ले लेते 30,000 रुपये लेते। अब क्या होगा उसमें, पत्थर तो वो खराब काम नहीं निकलता उसमें। कुछ मजदूरी करेंगे वहाँ 30-35 रुपया रोज। हाँ, नहीं पड़ता। 20 पत्थर काटोगे आधा टूट जाएगा, ऐसा है। ऐसा है, तो मजदूरी नहीं पड़ रही उसमें, क्या करें। और दूसरी जगह हाँ छोड़ आने नहीं देता है, वो ज्यादा करता है, नहीं तो मारवे की तो होश बता। अब क्या करें, दूसरी जगह हाँ डबल कर्जा मांगे, क्या है। फिर माथे बढ़ते गए, आज 1.5 लाख रुपए मांगता है। और खेती बाड़ी तो हमारे पास कुछ है नहीं, मजदूर हैं हम तो। खाने से भी परेशान हो गए, वे बच्चे वहीं रोक के रह गए। तो हमारे लिए जो उन्होंने जो मुंशी दरोगा होते हैं, बनाया माल 200 फुट और लिख दिया उसने 125 फीट या 100 फीट, ऐसे भी कलम से भी मार देते हैं। वो भाग के आ जाए तो पीछे जीप लगा के और बस यहाँ से ले जाए, वो यहाँ जूता मारे तो ये 5 आदमी और ये कहते हैं लिया तो साले बैठ इस गाड़ी में। और जैसे पीछे गाड़ी 3 दिन तक ढूंढा तो उसका भी किराया। उसके बाद अगर जैसे मान लो मैं भाग गया साहब, अगर जीप चली गई उसके पीछे ढूंढने के लिए तो फिर 2000 नहीं, फिर तो 10% ज्यादा लगाएगा और 2 जूत और जास्ती। कितने आपने कहा 1200 वोटर है ना? तो कितने सदस्य हैं जिनकी ऐसी हालत है? यहाँ कम से कम नहीं तो 300 से ऊपर। हाँ 300 से बल्कि 400 बैठेंगे। मैं यहाँ 16 साल हो गए काम करता है, 4,000 रुपये लिए थे मैंने। क्या हुआ, क्या 60,000 निकाल दे मेरे मत। 16 साल काम करा तभी मजदूरी पूरी नहीं दे रहे। तो मेरे बच्ची भी है तो उनके जाग में काम करती, बर्तन का। तो मैं बोलो मैंने कि भाई साहब उनको तो दो, नहीं मैंने बोल दी गुस्सा में, मैंने कि साफ पाड़ दो। और उन्हें 2.25 लाख निकाले 10,000 के। हाँ जी। 25 साल काम किया। हाँ जी। तो पैसा आपने लिया था कि आपके पिताजी ने लिया? पिताजी ने लिया, मेरी शादी करी ना। जो भी आपने मेहनत की सब उनके लिए की? हाँ जी। क्या क्या काम किया? वहाँ के सब काश्तकारी का काम करते, ट्रैक्टर चलाता, कोई गाड़ी माड़ी चलाता, कोई पानी भी लगाना पड़ता, कोई खाद बीज छांटना पड़ता। मैंने 700 रुपये लिए थे मैंने, तो लेकर मैंने 10 साल काम किया। तो वह एक हमारा होली पे झगड़ा हो गया था, तो मैंने कही मैंने चल तेरा हिसाब कर लेना। तो शाम की जोर को मेरा हिसाब सुनाया तो 22,000 रुपये माथे निकाले। 6 दिन के बाद मैंने पैसा लौटाया। 22,000 रुपये? 22,000 रुपये लौटा दिए मैंने। फिर दूसरे के लेगा, मैंने 1 साल भी इसका काम किया, 1 साल से भी झगड़ा हो गया था मेरा। फिर इसने निकाले मेरे माथे 24,000 रुपये।
सिर्फ 3 कुंटल ज्वार खाई थी 1000 का भाव का, और 300 के भाव की कुंटल ज्वार में लाया था खुद ही मेरे हाथों से। 12 महीना बिल्कुल काम किया मैंने, तो नागा एक नहीं करा मैंने। 1000 से फिर तय हुआ था भाई तेरा काम कर दूंगा, मेरे 24,000 इसके दे रहे। तो मैंने 12 साल इसका काम करने के बाद 12 साल काम किया तो मेरे 24,000 रुपये कोई अदा नहीं हुई बात। घरवारी भी सिंगी मियाँ भी दोनों काम करते, तो लेकिन कर्जा माफ हुआ ही नहीं। आज 22 साल हो गए काम करते करते। शुरू से कितना था? शुरू से मेरा 1500 रुपया थे। 1500 में कितना काम करता गया, मुझे इतने साल की साल पैसे बढ़ते ही गए। मैंने इतने साल काम करा 22 साल, तो मेरे माता 40,000 रुपये निकाले। 40,000 में से मैंने 22,000 रुपया वापिस लौटा दे। फिर मेरे से और पैसे मांगता था, फिर मार ठोक भी करी। मेरे परिवार में मेरा बच्चा है, बीवी है, वे भी वहीं काम करते थे, दूसरे के जाने नहीं देते। वो की रोटी खेत पे जागी तो रात भी वहीं दिन भी वहीं, न तो बस्ती में काई भी हो तो वो देख न सके। अब औरत भी खेत पे के तू मारे काम कर, नींदा को दी 30 रुपया में 20 रुपया में यही काम कर, तो उसका गोबर डालेगी और फिर ऊँटे झूठे बर्तन भी साफ करेगी, कपड़ा भी धोगी, और वहाँ का कपड़ा भी धोगी। फिर थोड़ी बहुत रात की रोटी बची खुची वे दे दी, और ज्यादा कर तो मार पीट करे। दिन में कितने घंटे काम करते थे आप? सुबह से जाते, दिन भर काम करते, 1 घंटा की रेस्ट मिलती। और रात में कब आते? 6 बजे। 6 बजे। अभी तो टाइम नहीं हो, ये से बोलते हमसे, हम टाइम जानते नहीं। अच्छा, तो कह रहे हैं जब और लेबर को लाते थे उनको ज्यादा पैसे देते, दिन को ज्यादा देते, तो आप मांगते तो कहते तो क्या बोलते, तुम तो नशा करे आई क्या? 40 रुपया में हिसाब करो मखा को। और 23 हाजरी मेरी 2000 काटते काटते कितने 700 रुपया में, जे मैं 600 रुपया लाई मैंने खर्चा को। अब देखो इतनी बेईमानी। कौन थे जो इनको बंधुआ मजदूर रखे हुए थे? काश्तकार जैसे 100 बीघा जमीन आती है, बड़े काश्तकार, बड़ा काश्तकार, तो वो बंधुआ मजदूर रख रहे थे। किसी का बंधुआ न रखा तो वहाँ का काम न चले। पहले 30 रुपया 50 रुपया भी पड़ जाता, ऐसा में काम कराता। अब आर की अब 150 में ले जा रहा दूसरा ने। छूटा कैसे तो? पर ये एकलेरा गाँव के छोटे हमने भी सुनी, चलो भाई वे छूट गए तो हम भी छूट सकते। हमने भी कोशिश करी कि भाई जुड़ के सारे ने, पर हम भी गए तो हम भी मुक्त हुए। 12 गए थे, कलेक्ट्री में गए थे, 12 जलसा में, जब जाके इनके साथ में साथ हुआ तो जब मेरा मुक्त हुआ। गांव से बंधुआ मजदूर आया है ने, बड़ी मुश्किल से डरता तो जागृत महिला संगठन ने की था घबराओ मत, युवा शक्ति संगठन ने 2 ही संगठन ने था घबराओ मत, माता के साथ जा, और जो भी होगी ना ये मां संभालेगा। किसान ने और संगठन बना रहा क्यों सर? अच्छा, किसान संघ, तो उनने वो चाहिए तो वो जागृत महिला संगठन के ऊपर दबाव भी हो गया, दबाव डालो। अच्छा। इनके बच्चा बच्ची पढ़ने तो आप पैसा मत दे, वहाँ से लाओ संगठन से। अब इनके डिलीवरी हो तो पैसा मत दिया, या को बाप मरे को नुकतो मा करावा, वहाँ ने तो मार पीट की भी धमकी दी सर को। बाद में केस आया तो उनसे भी सूचना करी ये केस आ गया, आप संभालो, है ना। तो आप वो 2-3 केस में परेशान हो गया संघाड़ा। 145 बंधुआ मजदूर आया, यहाँ ने जाकर सरकार में पेश किया। वो एक्ट 2 बातें कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति से एडवांस उधार देके जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। अच्छा। दूसरा वो एक्ट कहता है कि मिनिमम वेजेस से पैसा कम देके अगर आप काम करवाते हो, ठीक है, तो वो भी बंधुआ मजदूरी की परिभाषा में ठीक है। तो अगर किसी ने आपको बंधुआ मजदूर बनाया है तो उससे छूटने का तरीका ये है कि SDM की अदालत में आप एक एप्लीकेशन लगाएं। तो ये अपनी एप्लीकेशन हम इनकी तैयार करके देते हैं इनको कि भाई अब मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं बंधुआ मजदूरी से मुक्ति चाहता हूँ। SDM उसकी जांच करता है, और जांच करने के बाद उसको जब लगता है कि वास्तव में बॉन्डेड लेबर था तो वो विमुक्तिकरण प्रमाण पत्र जारी करता है SDO, और उसको उतने कर्जे से मुक्ति की घोषणा कर देता है। और जो जिसके यहाँ वो काम करता है उसको वो ये कहते हैं कि अब तुम इससे दोबारा कोई भी इसको तकलीफ करोगे, इसको तंग करोगे तो तुम्हारे को 3 साल की सजा हो जाएगी।
Freeing over 140 bonded laborers has been one of the crowning achievements of Sankalp, in which the women of Jagrut Mahila Sangathan have been key players. अब और भी तैयार हो जाते, पर माँ कह रहा था कि भाई माने सरकार से ये बात करिए, आपके सामने माने 140 की ये तो सामने कर दिया, तो आप कहते ना कि बंधुआ मजदूर कोई नहीं, 12 ये बात बंधुआ मजदूर है, आप देखो, तो अशोक गहलोत जी से माने ये कीजिए कि 12 जिला में जितना भी बंधुआ मजदूर है, इनकी एक बार सर्वे कराओ, सर्वे करवाओ, सबने सुनवाओ, सब लोग कहते कि ये भारत तो आजाद है, आजाद है, काहे को आजाद सर है? वो तो बेचारा दूसरा के बंद रहते, वो कहे को रोटी खा लो, तब तो रोटी खागा, वो कहे को सो जाओ, तब सोगा, अब वो कह दे को आज रात भर मत सो, रात भर नहीं पानी दो खेत में, तो वो सो कोई नहीं, और सोगा तो ठोकरा देगा. This small village, aptly renamed Chainpur, now breathes a huge sigh of relief. With a little help from Sankalp, they can now at least think of a future. जैसे मैं मुक्त हूँ और आज नरेगा में काम कर रहा हूँ, तो आज सूखी रोटी खा रहा हूँ. तो अब आप क्या कर रहे हैं? नरेगा में काम कर रहे हैं. तो आप भी मुक्त हो गए और आपने भी नरेगा में काम किया. नरेगा में काम कर रहे हैं. अब तक कितने महीना कर लेगा? 100 दिन हो गए, 200 दिन में खोद रहे हैं. और कितने पैसे मिले आपको 100 दिन में? हमको मिले 119 रुपये की रेट से. 100 आपने किया तलैया पे तालाब करो काम और ये मैं काली डे में बल डिवीजन में काम करो, और खुरंजा भी करियो काम, खुरंजा और रोड पे काम करो, या मैं नरेगा में. तो नरेगा का काम नहीं आता तो फिर और कहाँ काम करते हैं आसपास? केलवाड़ा है. अच्छा, दूसरा गांव में चले जाते हैं और वहाँ मिल जाता है काम. कितने उस पे मिल जाता है दिहाड़ी पर? 150 ही मिल जाता है, 120 ही मिल जाता है, 130 ही मिल जाता है. NREGA has played a significant role in this struggle, but much more needs to be done to ensure that this is not merely a temporary respite engineered by some well-meaning activists. 3 ग्रुप बनाए, तो अभी से 5 महीने हो गए, 7-7 हज़ार रुपये मैंने जमा कर लिए बैंकों में. अनाज बैंक का है, अनाज भी जमा कर दिया, और ग्रेल बैंक बना रहे हैं, अभी पत्थर खोल रहे हैं अनाज धरने के लिए. 4 ग्रुप बन चुके हैं औरतों के. तो हमारे सारे ग्रुप 50 रुपये महीने से तो ये सोलर लाइट में जमा कर रहे हैं. 100 रुपये महीने से तो हमारा बैंकों में खाता डालने के लिए चला रहे हैं. तो हमारे लिए 15-20 हज़ार रुपये का भी हो चुका है सारा. और जो कोई बीमारी पड़ती है तो 5,000 रुपये का 10,000 रुपये की जरूरत पड़ती है, तो बैंक से उठा के मजदूर को दे देते हैं. तो जिससे रुपया सैकड़े के हिसाब से ब्याज लेके वो जमा कर देते हैं. दुख बीमारी में कर्जा लेने के लिए हम सरदारों के पास, बनिया के पास नहीं जाएंगे. तो बच्चों की पढ़ाई की पढ़ाई चल रही है, अभी बाहर भी जा रहे हैं, पूरे बच्चे पूरे स्कूल में जा रहे हैं. मतलब 30 बच्चे तो हमारे सरकारी स्कूल में लग चुके हैं, जैसे हम मुक्त हुए हैं. जैसे कोई हमारे बाप दादा ने स्कूल नहीं देखे. तो In the long run, we have to create sustainable livelihoods. Fortunately, it isn't really that hard if the powers that be can be persuaded to set aside their ill-conceived concepts of growth and development. These people have sustained themselves for centuries, and if only we were to let them manage their natural resources, they would not only live comfortably, but will in fact engender an alternative paradigm of development that would be a shining example for the 21st century. The source of all wealth, after all, is the land, and that they have in plenty. Land that once hosted a vast forest, yielding a wealth of produce. What if we could regenerate what has been lost? In fact, they can regenerate it, if only we let them. वो स्कीम तो सरकार की फेल हो गई थी, तो उसको लेकर पर संगठन ने ये सोचा था कि गांव के लेवल पे अपन संगठन के साथ में जागरूकता का काम कर रहे हैं, राइट बेस भी हम काम कर रहे हैं. तो उसको लेकर वहाँ के लेवल पे एक महिलाओं की साझा वन प्रबंधन समिति पहली 2003 में खेड़ला गाँव में बनी थी. हमको एक सूत्र पे पुरोया, एकत्रित किया, फिर हमको समझाया कि जैसे जंगल बेकार पड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है. इनने ट्रेनिंग दिलाई इनको, उसकी सुरक्षा करवाई चारों तरफ. उसके बाद में जो गुजरों ने पता चला कि किस किस सहयोग से चल रहा है, तो उन्होंने इनको डराया धमकाया, क्योंकि वो सक्षम आदमी थे सर और हम गरीब. ये पास में एक गांव है मौदरा,
तो वो लोग इनके ऊपर जलती हैं, तो वो उजाड़ देते हैं इसको जबरदस्ती। तो वो कहते हैं यार उसमें पहले हमारी मवेशी सड़ती थी और हमने हक नहीं बनाया और तुमने हक बना लिया। बाहर देश से आके उनका भी क्लोजर बना था, उनके बने थे तो उनने सेवा नहीं करी तो वो क्लोजर उजड़ गया। फिर हमारी महिलाओं ने संगठन से युद्ध स्तर पे एक लड़ाई लड़ी। अब मतलब ना हमारी फसल चलाते हैं, वो घास उसमें अब इतना वृक्ष भी बड़े बड़े हो गए पहले से लगवाए जो, और घास भी उसमें काफी इतना बढ़िया होता है। तो उसका उदाहरण को देखते हुए राज्य सरकार ने इधर साबाद और किशनगंज तहसील में 148 एनक्लोजर किए। 2,500-3 हजार के लगभग बीघा जमीन सरकार की जो थी दूसरे के कब्जे में हो रही थी, कहीं ना कहीं जंगल कट रहा था, उसको खेती के योग्य बना रहे थे, उसको जंगल भी डेवलप हुआ और वो एक सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये क्लोजर है हमारे जो नाथान मोदरी में, ये 50 महिलाओं के नाम से ये सरकार ने दिया। इसकी जो 4 दीवारी है, जैसे हमारे 4 दीवारी करी सर की क्लोजर की, तो मान श्रमदान में क्यों पिसा मिसा कायम न लिया मान अन्याय मान 5-6 जनी ने मिलकर नर्सरी तैयार करी। जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो कुछ तो श्रमदान में लगाए थे और कुछ का इन महिलाओं ने नर्सरी तैयार की है और इनसे संस्था वालों ने खरीद के और उसी में लगाए थे। 25,000 के लगभग 25,000 के। आंवली, अमरूद, बांस, सतावर, कटेल, घेर, ग्वारपाठा, महुआ है, तेंदू है, सागवान है, छोला है, बेवड़ा है, कलम है। साहब जैसे मान लो तेंदू है तो उसमें पत्ता तोड़ते हैं, उसमें मतलब गट्टी बना के बेच देते हैं। 50 रुपए सैकड़ों हो गया। एक पेड़ से निकल जाते 100 भी निकल जाती है, 200 भी निकल जाती है। और उसमें फल आता है तेंदू। वो तेंदू मतलब अपने खाने के लगता है, मतलब बाल बच्चे भी खा लेते हैं, अपन बड़े भी खा लेते हैं। कोई को जरूरत पड़ती है तो घास काट लेते हैं और जानवर उनको खिलाते हैं। उसमें मतलब कोई दूध भी देता है तो वो दूध भी फायदा है। और गोबर उसका करता है, वो खेती में डालते हैं। तो जब ये एनक्लोजर नहीं था तो आपको सरकारी खाद लानी पड़ती थी? हाँ, सरकारी खाद लाते थे। अब नहीं लानी पड़ती? कम लाना पड़ता है। महुआ पटक जाता है, आता है, वो महुआ बीन लेते हैं और ऐसी टेम आ जाएंगे तो कोई के पास नाज भी नहीं होता तो उसको सेक के भी खा सकते हैं। और नाज पानी है तो ऐसे भी सकते हैं। 15-20 रुपए का किलो। अब कोई दारू बनाने वाला दारू भी बनावे। इस गांव में 2 के 3 आदमी पीवे वाले होंगे, नहीं बाकी मतलब कोई पीवे वाले। इससे अचार वगैरह अचार भी बनता है, खाते भी, सब्जी भी बनती है। कांकेर तो खा लेते हैं बच्चा बच्ची आदमी। छेलिया मेलिया हो जाते हैं तो उनके पत्ता मत्ता काट कर टपरी मपरी छा लेते हैं। वैसे जमरासी बोलते हैं। जमरासी लकड़ी के लिए, जलाने के लिए। और क्या ये खाना है। इससे क्या होता है? खांसी के आराम मिल जाता है। अब आगे तो ये सोच रहे हैं उसके बारे में कि जैसे पेड़ पौधे तैयार होंगे उसमें बहुत सारे जंगल पैदा हो जाएगा और जंगल के होने के बाद में हम सोच रहे हैं उसमें हमारे लिए कुछ ऐसे अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो हम व्यवस्थित खेती भी उसमें करना चाहते हैं। अब ये देगा तो हम इसमें ही काम कर वो करेंगे, जहाँ हम हमारा पेट पालन बढ़ गया इसकी सेवा भी करेंगे हम क्लोजर की और बाहर नहीं जाएंगे सब। इससे गांव में पहले शिक्षा का भी मतलब अभाव था, हालांकि स्कूल थे लेकिन विद्यालय मतलब ये पेड़ के नीचे चलता था मतलब उस टाइम पे। ये आने के बाद में इन्होंने स्कूल भी खोले। आज इसमें मतलब बच्चे कोई BA भी कर रहा है, ये ITI भी कर रहा है, 12वीं कर रहे हैं। जैसे माँवाड़ी है, आंगनबाड़ी है, हमारी महिलाएं मतलब यही काम कर रही हैं। संस्था के माध्यम से तो अब छात्रावास भी खोल दिए सरकार ने। हमारे बच्चे 5वीं पास करके 6ठी से उसमें चल जाते हैं, अध्ययन करते हैं 12वीं तक। और फिर हमारे खेलवाड़े में कॉलेज खुल गया। जो यहाँ पे परिवार हैं, कितने परिवारों ने नरेगा में काम किया है? नरेगा में सर करीब सभी करते हैं यहाँ। सभी करते हैं? सभी के जॉब कार्ड बने हुए हैं। जब तक महिला एक तरह से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होती तो एक तरह से जो परिवार में निर्णय लेने की क्षमता होती है वो नहीं आती। तो स्वयं सहायता समूह बनाए कि हर एक महिला को 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक हर सदस्य इकट्ठा करे। ऐसे जीवन के बाद ये होता है कि मान लो कि महिलाओं को कोई ऋण लेना है बैंक से, तो जितनी खाते में बचत होती है उससे लगभग 6 गुना ज़्यादा तक ऐसा बैंक से लोन मिल जाता है। 50 गाँव में स्वयं सहायता समूह बनाए। फिर 2-3 समूहों के साथ हमने इनको आगे बढ़ाने के लिए आजीविका का काम शुरू किया। जैसे मामोनी में हमने नर्सरी बनाई,
डेयरी का काम भी शुरू किया और एक आमला प्रोडक्शन यूनिट शुरू की। After a decade of work, women of Jagrut Mahila Sangathan have accomplished a great deal of what they set about to do. मौत भी होगी तो फिर जागृत महिला संगठन ने 5 मुद्दा हाथ में लिया। जागृत महिला संगठन बनाया ना 2002 में, फिर वो में अकाल पड़ गया। जो अनाज मिल रहे थे 2 रुपया किलो का, तो वो की भी जागृत महिला संगठन ने लड़ाई लड़ी। अब पहले तो 2 रुपया किलो को जब फ्री में ही देने लग गया। ये वन भूमि की लड़ाई लड़ी तो का भी कुछ पट्टा मिल गया, थोड़ा बहुत बाकी रह गया तो वे भी मिल जाएगा। और जिसे फिर वो समाज के लेकर मां लड़िया कि भाई तो कम से कम जो शेरिया में लाभ मिल रहे थे वो माँ पे भी मिले। रोजगार के कारण लड़ रहा था तो रोजगार भी चालू हो गया। यहाँ पे 200 दिन हो गया, 100 दिन का 200 दिन भी हो गया, शेरियान में खेरवान में। तो वो किसान के बाहर मजदूरी करवा जाता ना, वो मजदूरी गांव में ही मिल रही है। किसान के पहले तो आदमी मेहनत करके लाता तो महिला में न देता, वही खर्च कर देता। अब कम से कम महिला काम कर रही है, महिला बैंक में ले जा रही है, महिला का हाथ में आ रहा था 1000 रुपया हाथ में आ गया है ना, 2000 रुपया हाथ में आ गया। अब पहली बेचारी का 20-25 रुपया लाती, तो बहुत खुशी की बात है कि महिला का हाथ में रोजगार गारंटी का पैसा है। In addition to this pioneering work, Sankalp and Jagrut Mahila Sangathan have been enthusiastic partners in the various state and national level efforts. जैसे अभी हम नरेगा काम चल रहा है, नरेगा में जिस मतलब पैसा देना नहीं देते, तो हमने जैसे हमने यो 2 अक्टूबर का जो प्रतिभा में धरना लगाया तो 5 ट्रक पूरे राजस्थान में चला। ट्रक में गीत बाजना गाते, गांव गांव में जाते, गांव में मांग कर हम ट्रक में डीजल पेट्रोल पटकवाते और गांव में रोटी खाते। हम 12 जिले से 300-400 साल और 15 दिन के ये जयपुर में। जयपुर में। But the strength and success of this movement is the confidence that these women have gained. And that is reflected in these stories of courage and determination. अच्छा, एक टोरिया की लड़की थी, गुजर ने उसके साथ बलात्कार किया है ना, तो फिर वो गुजर तो थाना में भेजो और वो 25,000 मार दे दुआए लड़की। जिसे यहाँ इकलेरा गाँव से सर बदुआ मजदूर छुड़ाया ना, वो में 2 लड़कियां के साथ बलात्कार करिया हुआ ने। अच्छा। वो कारण ने तो वहाँ की रिपोर्ट दर्ज न करी, केस बोर्ड मोड़ कर दिया ने। वो का बाद में फिर जागृत महिला संगठन में बंधुओं मजदूरों से जुड़ी और जागृत महिला संगठन ने फिर दोबारा केस उठाया। जब जाकर वो मीणा जेल में बंद करिया और फिर यहाँ से गेलो जी आया। अच्छा। इकलेरा गाँव में बुलाया हुए। अच्छा। तो जी के बाद में फिर वहाँ पे 2-2 लाख रुपया मिले, एक लाख, दोनों बहने में 2 लाख मिले। तो होड़ी घोटी में तहसीलदार साहब आया शाबाश होड़ी खेल बावा, तो मैं शेरिया में तो राय जंदरा नचे कपड़ा वपड़ा पहन ले आदमी और नाच रहा, खूब ढोल डबला बज रहा था। वहाँ शराब पी बली तहसीलदार साहब ने, अब शेरिया तो नाच कूद रहा था। जो आदमी ना जो औरत जाने तहसीलदार साहब ने, तो उसने ना जो इधर उधर हाथ डाल दिया होगा, छेड़ा छेड़ी कर दिया, जैसे हमारा कुटी हो गया हुए। उन्होंने पुलिस बुला ली और वह गुलाब नाम की महिला थी जी की मारपीट करी ना, तो उसकी हत्या होगी। तो शेर बेचारा डर की मारी बच गया वो तो, और वो पुलिस कट गई वहाँ साबाद। तो पता पड़ रहा है पूरी शामिल होकर बेड़ी होकर गया वहाँ मामूनी। तो फिर मानो वहाँ जाकर थाना वहाँ तहसीलदार के सामने तहसील का वहाँ दानो रख दे सर 9 दिन को 10 दिन को दानो रख दे। तो वो तहसीलदार भी मानो बर्खास्त करा दे वहाँ से, बर्खास्त करवा दी और पुलिस भी बर्खास्त करा दी और गुलाब बाई माओ जो दुआए माता। तो मामा बहुत हिम्मत आए और बहुत काम कर रहा था गाँव का। गाँव के बिना कसूर के किसी लोग से डरपने नहीं चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई गांव के लोग हो। नहारगढ़ में जब अकाल शेरी विशेष योजना चल रही थी, मतलब शेरियों के लिए का, तो वे बाकी लोग दूसरे समाज की हाजिरी लिखाने चाहते थे। तो उसने कही भैया मैं तेरी हाजिरी तो लिख दूंगा, फिर तू काम पे चलना। दूसरे समाज के लोग काम नहीं करने चाहते थे। उन्होंने बड़े लोगों ने धाकड़ों ने उनको कही तू हाजिरी लेकर था, उसकी मारपीट कर दी और रिपोर्ट दर्ज करी तो उन्होंने झूठी साची लिख ली। अब सभी लोग हम पढ़े गरीब लोग ज़्यादा से पढ़े लिखे थे इतने ज़्यादा, तो उन्होंने मारपीट कार्रवाई नहीं करी। तो हम संगठन से गए
तो माने कही था कार्रवाई करो, तो बिने नहीं सुनी तो फिर हमने दोनों तहसीली में सूचना दी और इसमें तो हमने धरना लगाया। अंदर भी तो अंदर रहेगा, हम दरवाजे पे बैठ गए, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। दोनों जगह नहीं मिली, कुछ पुलिस वाले बाहर नहा रहे थे चड्डी में खड़े, तो भी तो बात जाके बेटे बाजार में जाके कहीं फोन करके STD से फोन करके आए डिप्टी साहब के लिए। डिप्टी साहब आए कि आप में कहीं नेता कौन है कहीं, हमने बोली हम तो सभी नेता है, समस्या तो हम सबकी है। एक दिन में वो कार्रवाई करी उन लोगों ने, पुलिस थाने वाले ने सभी ने, और उनके लिए धाकड़ों के लिए गिरफ्तार किया और हमारी मांग पूरी हुई। तो मैंने नरेगा का काम किया था, 3 महीना हो गया। जब बैंक में सर माँ को हिसाब कर दो, सब माँ का पैसा दे दो। तेरा बाप डर गया ना जिकर ले भाई ने, तेरा बाप कहा का बैंक निकल जाओ, ताला लगा अंदर में तो अंदर रही है और पूरी पब्लिक बाहर रही है। तू में से कमाल जाने कमाल में से देख कर पूरी औरत फिर वो लुगाया ना सारी ने धक्का दिया, धक्का दिया मार कर शांति से, तो फिर पूरी लुगाया अंदर उड़ गई। फिर वह कुर्सी थी ना, कुर्सी लेकर नु फेंक बल जो लुगाया ऊपर, तो मन पब्लिक थी लुगाया नु ऊपर नु जेल का आर उनको गुस्सावरी तो माया से खींच लाई और पूरी लुगाई ने भी कूट गालो, कूट काट कर फिर मार रानी बड़ोदना थाना में आ गया। लाइट कट गई थी, कंप्यूटर बंद हो गया था, ऐसे वैसे लगा दी ना, तो बहाने बना बाधा लगा दी। तुमने तो कूट काट कर मार पीट करी, थाना ऐसा करी उन्हें बुलाओ कर मत नू कब्बर लग गई माँ देकर धनी ने भी आ गई उनको, तू कहाँ पे मत और जे हुआ जे क्या गलती तो में से माँ में से, तो मुँह तो था हाथ जोड़ूंगा, मुँह तो यो चिलो पहले की ना करेगा तो औरत फिर भी करेगी, भूलेगी थोड़ी, फिर भी करेगी। ये घटना तो आपका ज्यादा पीट हो, आपकी ज्यादा होगी, आपका ज्यादा पिटाई फिर पेमेंट करियो ना, फिर माँ पैसा लेवा जामा दे नु कहबे माँ से और देगी मारे तेने दी छे ना जे लुगाया जा दी पैसा गण के लुगाना नु पचीट कर दे। ये तेरा पेमेंट ले, ये तेरा जो काट ले और देगी मना भी नहीं कर सकता। सर अब 2-5 दिन के पहले की बात थी कि कोई से रिश्तेदार में लड़ाई होगी। अब वो एक ने आकर यहाँ रिपोर्ट कर दी, 2 तो महिला 2 आदमी, दोनों का आदमी विकलांग, तो तुम तो थे ने, तुम तो के लुच्ची है, तुम तो गुंडी है के, ये आदमी तो के विकलांग है के तुम्हारा के, तुम्हारे बच्चे ने कैसे पाल रही होगी तुम के, तो तुम्हारा आदमी तो ऐसी करते हैं, तुम्हारा आदमी तो टिकट काटते हैं और तुम ये सब धंधा करती है क्या। फिर वे बंद कर दिया चारों थाना में। अब बेचारे वे कभी थाना का मुंडा ही नहीं दे दिया उनने, और थाना में लगी हुई औरत तो ये तो डर पड़िया तो वहाँ से की कि भाई 5000 रुपया दे दियो, तुमने छोड़ देगा। 2250 रुपया दे दिया वहाँ पे, 2250 रुपया दे दिया और बाकी का फिर दे देगा, फिर छोड़ दिया। ये जसोदान सूचना करी तो मन की भाई था 2250 रुपया ले लिया तो क्यों ले लिया, माँ के साथ चलो। फिर सर माँ वहाँ आया और फिर वहाँ ने की आओ बेटो चाय माई पियो, पानी वानी पियो, पुलिस वाले ने तो मन की सर बेटेगा तो सही है ना, पर मैं 2 बात के लेकर यहाँ आया था। मन की सर पहली बात तो यह कि ये मारो शरीर है ना, तो आपका अधिकार नहीं है मारो शरीर, मुँह किसे रहूँ, किसे ओढ़ो पेरू, किसे खाऊं, ये तो सही बात है। तो मन की आपका जवान है ना, ये दोनों महिला संट बात करिए, आपका बच्ची ने कैसा पाल रही है, आपका आदमी विकलांग है, आपका तो टिकट काटते हैं आदमी, तो ये आपके घर पे जाते हैं, आप बदमाश है, तो पहले तो आप यही पे कार्रवाई करो। तो मैं बुलवाया, फिर भी आया तो उनकी रिपोर्ट लिखी, अब फिर वहाँ से महिला पे माफी मंगाई, फिर मन की सब वो 2250 रुपये लिया था, वे वापिस कर, तब जाके वे वापिस कराया, पैसा वहाँ पे दिलाया। एक बंधुआ मजदूर जो जिन्हें मीणा पकड़ ले गया सकरावता गांव में, तो फिर यहाँ से एसबी का फोन करियो, एसबी ने थाना में फोन करियो, तो उन्हें बेचारा छुड़वा के लाया वे। तो ये थाना कचहरी की तो सर घराड़ी बात होगी, फोन पे वे सुन लेते, कार्रवाई भी कर। What do they wish for the future? अब इच्छा तो सर माँ की ये थे कि देखो कि एक तो
बंधुआ मजदूरा की पूरा की सर्वे करके बंधुआ मजदूर छुड़ाना। और मैं ये भी सोचना चाहूँ कि किसी महिला पे अत्याचार नहीं होनी चाहिए। ये संगठन है तो ये संगठन और बड़ो होए और आगे संगठन अच्छा काम करता ही रहे। संगठन तो बोले पूरा राजस्थान में फैलो, बढ़ तो जाओ, कतनो बढ़ो, ये अच्छा चमा की। It has been said that India lives in its villages. That may be an exaggeration, but clearly, in this fast globalizing world, villages still define the essence of India. It is a core that is enormously rich and diverse and remains fundamental to the vitality of India as a nation and as a culture. But those who preserve and nurture this core are in a bad state. And yet, all they ask is a fair chance to make a living. In this 21st century, with humanity poised at the door of space travel and artificial intelligence, that isn't too much to ask. जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अभी तो अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। IFA has chosen to support Sankalp in expanding its groundbreaking work to more villages and beyond. We also hope that this work will impact positively on the issue of bonded laborers and forest development in the entire state of Rajasthan, if not in the country as a whole. मस्त हो जाए।